Hello students, now see page number 357. So we were discussing about cloud computing. Cloud computing is the internet based computing whereby shared resources, software and information are provided to computers. Means cloud computing means होता है internet based computing in which we can do processing, do storing, we can share resources like information, software. So these are done on the internet. So here we are going to discuss some characteristics of cloud computing. The first one is on-demand self-service. Users are able to provision, monitor and manage computing resources as needed without the help of human administrators. Means there are so many services which can be easily managed and monitored by the customers, by the users, as we are the users. You know very well, when we are working on internet, we can manage all the computer resources ourselves. Okay, so we do not need anyone's help. So this is called self-service. Broad network access computing services are delivered over standard networks and heterogeneous devices. Second characteristic क्या है? Broad network access means broad means very wide. Okay, whatever standards, you know, when we are talking about internet, so many standards are used like protocols, web standards. Okay, and heterogeneous devices means all types of devices, not only one type of device. You know very well, we can access internet, we can do internet based computing on any इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि वी कैन डू इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग ओनली ऑन वन डिवाइस. हिट्रोजीनियस मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स. देन रैपिड इलास्टिसिटी. रैपिड इलास्टिसिटी मीन्स फास्ट फ्लेक्सिबिलिटी. रैपिड मीन्स फास्ट एंड इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. IT रिसोर्सेज आर एबल टू स्केल आउट एंड इन क्विकली एंड ऑन एज नीडेड बेसिस. आप जितने भी IT रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो भी हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वी कैन वेरी इजीली मैनेज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड. जैसे भी आपको चाहिए, यू कैन इजीली मैनेज इट. इट इज़ वेरी easy to manage because it is flexible. We do not have limited amount of things. Resource pooling. IT resources are shared across multiple applications and tenants in a non-dedicated manner. Non-dedicated means होता है कि not only for a particular work. It can be provide and shared on for different applications for different purposes. Tenants means होता है those who are using these services for टेम्परेरी बेसिस. टेनेंट होते हैं ना जो टेम्परेरी के लिए होते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर. ओके, सो इन दिस रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर एनी पर्पस, फॉर मल्टीपल पर्पसेस. It can be used by temporary person also, those who are not permanent on internet, and to all, not for a particular purpose. Non dedicated मतलब होता है कि सिर्फ उनका काम सर्व करना नहीं है, एक्सेस करना भी है. Measured service. Measured service means which is measured according to day, time and minutes. Day and time, or it is measured according to the distance covered by it. IT resource utilization is tracked for each application. You know when you are accessing internet, तो आपको इंटरनेट में जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आप कितनी डिस्टेंस, उसमें कितने टाइम के लिए, ठीक है, कितना आपने अपलोड डाउनलोडिंग किया, तो उसमें सब कुछ मेजर्ड होता है. एंड टेनेंट टिपिकली फॉर पब्लिक क्लाउड बिलिंग और प्राइवेट क्लाउड चार्ज पे. चाहे आप पब्लिक क्लाउडिंग करो, अभी हम पढ़ेंगे कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है. प्राइवेट क्लाउड मीन्स होता है इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. Public cloud means it does not belong to a particular organization. So common cloud examples are Google Drive. All of you know, we are all familiar with Google Drive. It helps us to put all our information on Google Drive so that we can easily access it anytime from anywhere. iCloud, Internet Cloud, Microsoft Azure, OneDrive. So there are so many cloud examples are given which help us to manage all types of internet computing. The client consists of hardware and software that access cloud services. अब there are two type of clients, thick and thin. Thick clients क्या होते हैं? Those who have fully functional computer on each desk. जैसे आपका PC है, लैपटॉप है, ठीक है, जो
मेनली मेंट फॉर फंक्शनल ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे लैपटॉप है, इसका पूरा जो प्रोसेसिंग है, पूरा काम जो है वो कंप्यूटिंग का ही है, ठीक है, इट इज़ मेंट फॉर दैट ओनली। बट इफ़ अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हमारे नेसेसरी टास्क को देने के लिए, पूरा करने के लिए दी गई हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मोबाइल एक कम्प्लीटली थिक क्लाइंट है, इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर कंप्यूटिंग। ये सिर्फ मोबाइल है, जैसे आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, इट्स नॉट मेंट फॉर कंप्यूटिंग ओनली, उससे हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर कंप्यूटिंग। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिक क्लाइंट एंड थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट मशीन प्रोवाइड जस्ट द फंक्शनैलिटी needed to accomplish the necessary task, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो these are the thin clients. We cannot say they are fully functional computer, क्योंकि जो एक कंप्यूटर होता है प्रॉपर, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो इनमें प्रॉपर कंप्यूटिंग के सारे फंक्शंस होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, एवरीथिंग इज देयर, इट इज़ मेंट फॉर दैट ओनली। लेकिन जो आपके स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर फुली फंक्शनल कंप्यूटर। येस, वी कैनॉट से दैट कि ये कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं कर सकता, इट कैन, बट इट हैज़ few necessary tasks are there which help us to do our computing work also if our computer is not with us. Now cloud services. Using clouds, many types of services are offered accessible to clients. There are broadly 3 types of cloud services. अब 3 types of cloud services क्या हैं? First is software as a service. In this type of service, a complete application is offered to the customer, okay, as a service on demand, the on-demand service. अब क्लाउड सर्विस में पहला जो टाइप है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मीन्स दे प्रोवाइड यू सो मैनी सॉफ्टवेयर्स ऑन इंटरनेट विच कैन फुलफिल योर डिमांड with SaaS. You don't have to worry about the installation, setup and running of the application. अब गूगल की इतनी सारी ऐप्स हैं जो एक कंप्लीट एप्लीकेशन की तरह वर्क करती हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स हैं, गूगल ऐप्स में बहुत सारे, से गूगल क्लासरूम है, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ओके। गूगल डॉक्स पे हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गूगल फॉर्म्स हैं, इट कैन बी यूज टू गेट फिल्ड फॉर्म्स बाय द कस्टमर्स और वी कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन यूजिंग गूगल फॉर्म्स। तो ये सब सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं। तो उसके लिए अगर आपको गूगल डॉक्स यूज़ करना है या गूगल की कोई भी ऐप यूज़ करनी है, तो यू नीड नॉट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन, इट इज़ वेरी इजी टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज बाय गूगल ऐप्स. Service provider will do that for you. You just have to pay and use it through some client. For example, to use office applications online, to use email services online, sending bulk emails using a software, web conferencing, customer relationship management, project management, invoicing and many more. So with the help of software as a service online, we can do so many सर्विसेज, चाहे वो ऑफिस एप्लीकेशंस हो, ईमेल सर्विसेज हो, सपोज यू वांट टू साइन बल्क में, जैसे स्कूल्स में क्या होता है या कॉलेजेस में क्या होता है, अगर सारे बच्चों को कोई एक पर्टिकुलर हॉलीडे का नोटिस या कुछ भी भेजना है तो थ्रू बल्क ईमेल भेजा जाता है. वेब कॉन्फ्रेंसिंग, यू ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Customer relationship management, we can also do it online. Project, we can, if we are working on a project from different parts of the world, we can manage it online. Invoicing is receipt, which is used to prepare bills for customers and many more. The SIPO app available with this book also uses some type of SaaS, and SaaS, today's SaaS is offered by companies such as Google, Salesforce, Microsoft, Zoho, etc. तो ये सब बहुत सारी online apps हैं which can be provided as a software, internet softwares. Platform, now it also works as a platform. Platform मतलब वो आपको ऐसा environment provide कर देती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्लेटफॉर्म है, या कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, डाटाबेस यूज़ कर रहे हो, वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो ये सब प्लेटफॉर्म. इट इज़ ऑफर्ड एज अ सर्विस upon which means it provides you a environment in which you can perform higher level of services like operating system, programming language execution environment and databases and web server and so forth. For instance, PaaS can make you available a pre-configured server and a front end to work on databases. The customer has the freedom to build his own applications which run on the provider's
platform to meet manageability and scalability requirements of the application. ठीक है, अब परफॉर्मेंस में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप सर्वर्स का यूज़ कर सकते हो. एज हम आजकल क्या करते हैं, वेब सर्वर्स का यूज़ करते हैं. वी कैन पुट ऑल आवर इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेब सर्वर. और फ्रंट एंड में देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर के दो एंड होते हैं. फ्रंट एंड पे GUI होता है, बैक एंड पे डाटाबेस होता है. अगर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो जब वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स होते हैं वो कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो GUI सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. पर बैकएंड में ये सब कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, डाटाबेस. तो यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ है. जैसे आप पाइथन और SQL दोनों पढ़ रहे हो, तो ये दोनों क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि इंटरेक्शन आप करोगे पाइथन से. और बैकएंड पे सॉफ्टवेयर कौन रिट्रीव करने में हेल्प करेगा, MySQL. तो MySQL एक DBMS सॉफ्टवेयर है जो बैकएंड पे रहेगा, और पाइथन से आप इंटरेक्ट करोगे किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए. तो आप नेक्स्ट ईयर डाटाबेस कनेक्टिविटी भी लर्न करोगे. वो आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. द कस्टमर हैज़ द फ्रीडम टू बिल्ड हिज ओन एप्लीकेशंस which run on the provider's platform to meet manageability and scalability requirements of the applications. PaaS provides offer a predefined combination of operating system and application servers. तो इस तरह से अब जैसे Linux है, Apache है, Apache एक वेब सर्वर का नाम है, MySQL you people are already learning. Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और PHP प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट है. ये डायनामिक वेब पेजेस बनाने में काम आता है. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं which help us to provide a environment so that we can develop any type of application software. Infrastructure as a service. IaaS provides basic storage and computing capabilities as standard services over the network. ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, आप स्टोरेज कर सकते हो. All types of computing capabilities are provided over a network. IaaS provides the computing infrastructure, फिजिकल वर्चुअल मशीन, जैसे सर्वर्स ऑनलाइन प्रोवाइड होते हैं. आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे एक्सेस करते हो वो किससे करते हो, सर्वर्स. तो सर्वर्स एक वर्चुअल मशीन है. दीज आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट. ओके, फिजिकली प्रेजेंट का मतलब है जैसे आप गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि गूगल इज़ ओनली वर्किंग फॉर यू, बट इट्स नॉट लाइक दैट. एट द सेम टाइम millions of customers are accessing the information from Google. So it plays the role of virtual, means it is at one place but playing the role of multiple machines. तो इसको हम कहते हैं virtual. And other resources like virtual machine, disk image library, block, file based storage, firewalls आपको पता है क्या होती हैं, which protects the trusted network from the untrusted network. जैसे हम वेबसाइट्स पे फायरवॉल क्यों लगाई जाती है, so that it cannot be hacked. लोड बैलेंसेस, IP एड्रेसेस, जैसे जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल हो चाहे हमारा लैपटॉप हो, वो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है सो दैट वी कैन इजीली एड्रेस. वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. So there are so many services which help us to provide storage and computing capabilities by the cloud computing. The customer would typically deploy his own software on the infrastructure. तो means to say that कि जब अगर हम cloud computing की बात करते हैं तो they provide us all types of computing capabilities and storage capabilities, and customer need not to purchase any software. कोई भी उसको अलग से सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द. अब जैसे आप स्टोरिंग करते हो, गूगल ड्राइव पे आप सब कुछ डाल देते हो, यू नीड नॉट टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर फॉर डैट. तो दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग. जैसे अमेजॉन है, विंडोज़ एज्योर है, रैक स्पेस है, गूगल कंप्यूट एंड मैनी मोर. तो दीज आर प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग. इन्होंने आपको एक फिगर के थ्रू दिखाया है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हाईली स्केलेबल इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं. प्लेटफॉर्म में वो आपको सारी टेस्ट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आपको स्टोरिंग में और डाटाबेस में और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ में हेल्प करता है. तो इन दिस वे वी कैन लर्न. Now types of clouds. Now there are 4 types of clouds: public cloud, private cloud and high. इसमें सिर्फ 3 दिए हैं, वैसे community cloud भी होता है. So we will discuss these type of clouds.
देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दैट यू कैन सब्सक्राइब टू डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स. पहला है प्राइवेट क्लाउड. इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय वन बिजनेस और आई टोल्ड यू प्राइवेट मीन्स क्या होता है, विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड. In a private cloud, the services and infrastructure are always maintained on a private network and the hardware and software dedicated solely to one organization. Means अगर हम private cloud की बात करें तो उसमें जो उसकी जो मेंटेनेंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सर्विसेज हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिसको वो बिलोंग करता है. ओके, विच टू अ डेडिकेटेड, it is dedicated to one organization. So for maintenance also it is responsible and for overall उसी का उस पे कंट्रोल होता है. No outsider can interfere. Private clouds are often used by government agencies, financial institutions, any other mid to large size organizations with business critical operations seeking enhanced control over their environment. तो private clouds कौन यूज़ करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई भी मिडिल साइज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो बिजनेस क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो इनको हम प्राइवेट क्लाउड भी कह सकते हैं. क्योंकि ये अब जैसे अमेज़ॉन का जो सर्वर है वो अमेज़ॉन को ही बिलोंग करता है. ठीक है, एक्सेस हम भी करते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सॉफ्टवेयर है, उसकी जो भी XYZ जो भी कंट्रोल है वो किसको बिलोंग करता है, अमेज़ॉन को. तो अमेज़ॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है. अ प्राइवेट क्लाउड ऑल्सो नोन एज इंटरनल और इंटरप्राइज क्लाउड रिसाइड्स ऑन कंपनीज इंट्रानेट और होस्टेड डाटा सेंटर वेयर ऑल द डाटा इज प्रोटेक्टेड बिहाइंड अ फायरवॉल. तो इस तरह से वो अपने प्राइवेट क्लाउड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. So private cloud means which belongs to the particular organizations, its hardware, software, everything belong to that organization only. तो उनका पूरा full control होता है. For other type of clouds we will learn in other class. Thank you.